everyone, how are you all? I hope you all are doing great. It's been long. I was planning to have an interactive session with you all, but I was occupied with routine stuff. Also, I was under the weather. You can feel the sound of that ganda wala cold and cough. So now I am much better. So that is the reason today I am here in front of you all. So let's have a kind of gupshup today. And you know what? I'm going to discuss about a few things. Wait. Now discuss about. यहाँ पे हमें रुकना है and we need to think. If we are using discuss, then there is no need to add about, because discuss itself means कि हम किसी चीज़ के बारे में, विषय के बारे में बात कर रहे हैं. तो डिस्कस के साथ अबाउट को हम रहने देंगे. ये दोनों, इन दोनों का कोई भाईचारा नहीं है. दे आर नॉट फ्रेंड्स, सो लेट देम अपार्ट. इनको हम अलग अलग ही रखेंगे. सो हमारा सेंटेंस सही क्या बनेगा? टुडे आई वांट टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग speaking skills or communication skills, or how can we communicate efficiently, confidently, and so on. It was a time when I was pretty conscious about myself, about my communication skills, speaking skills, and you know what, whenever I recorded myself, I just did not want to make any mistake. I am talking about my past videos, whatever I have posted on YouTube, because I never wanted to make mistakes, or I never wanted to face my mistakes, I would say. And you know what, this fear is the biggest hurdle between you and your efficiency, right? मैं तो समझ गई हूँ इस चीज़ को. Now it's your time to understand this thing. If we have that fear of making mistakes, we have that fear that people are going to judge you, what they are going to observe about you, or people will laugh at you. So ये सारे जो डर है ना, इनको हमें निकालना होगा दिमाग से. Because until and unless we are going to face all the fears, all the problems, how can we overcome this? जब तक हम उनको फेस ही नहीं करेंगे, हम ओवरकम कैसे करेंगे? सो एंड व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग स्किल्स, जब तक बोलेंगे नहीं, कैसे सीखेंगे? एंड व्हेन वी स्पीक, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स. ये नहीं होगा कि आप 1-2 दिन के लिए या कुछ दिन के लिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करोगे. समटाइम्स यू आर गोइंग टू मेक ब्लंडर्स. आई एम टेलिंग यू, ऐसा होता है. इट हैपन्ड विद मी मैनी टाइम, इट स्टिल हैपन्स विद मी. जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, sometimes I speak quite confidently, fluently, efficiently, and sometimes I just get confused, stuck, fumble. So it's very normal. It's very बहुत ही माइनर सी चीज़ है. Don't just take it कि हमने कुछ गुनाह कर दिया. It's nothing like that. It's not a big deal. राइट? सो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ फेस करनी है कि whenever we are talking to someone, if we are making mistake, okay, that's very normal. It's fine. अगर हम गलती कर रहे हैं बोलते टाइम, it's fine. Let's get back to our topic. I was about to discuss a few things with you, right? So क्या होता है sometimes when we are thinking something, or some thoughts are going on in our subconscious mind. Eventually, at night, we see dreams related to those thoughts. Wait. Again, we see. जब हम ड्रीम की बात करेंगे, then we are not supposed to use C word. हम इसको कैसे बोलेंगे? We have dreams और dream of. इस तरह से हम बोल सकते हैं. हमें have verb यूज़ करनी है. प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैव, अभी सपना देखा, ऑब्वियसली हम पिछली रात की बात ही करते हैं, तो हम बोलेंगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, और आई ड्रेम्ड. ड्रीम की सेकंड फॉर्म. तो आपको याद रखना है, कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे आई सॉ अ ड्रीम. आई हैड अ ड्रीम और आई ड्रेम्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो ओके, येस, वी हैव ड्रीम्स कनेक्टेड टू दोज थॉट्स. आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब भी वेन एवर समथिंग गोज़ ऑन इन माई माइंड, आई हैव
similar dreams that night. Now as we are talking about dreams, you know what, जब हमें थोड़े भयंकर से सपने आते हैं तो उनको हम बोलते हैं नाइटमेयर. ओके, सो you will be amused to know at this age I usually I have dreams about my college, about my school life, and in my dreams I'm doing my exams. Hold your horses, I am doing my exams? No. So when we are talking about exam, हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं एग्ज़ाम कर रहा हूँ तो डू लगा दी, बिकॉज वी आर इन हैबिट टू ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. बट एग्ज़ाम के लिए हम क्या बोलेंगे, जैसे आपको बोला मैं अपना एग्ज़ाम कर रही हूँ, आई एम राइटिंग माई एग्ज़ाम, आई एम सिटिंग फॉर माई एग्ज़ाम, और आई एम टेकिंग माई एग्ज़ाम. तो आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना कि इट्स माई एग्ज़ाम, आई हैव टू डू माई एग्ज़ाम. नो, आई हैव टू टेक माई एग्ज़ाम, आई हैव टू राइट माई एग्ज़ाम, और आई हैव टू सिट फॉर माई एग्ज़ाम. क्लियर? दिस हैपन्स विद मी. अभी भी इट्स 20 years back when I sat for my exam. Now again 20 years back, but it's wrong when we are talking about 2 days back, 3 days back, 3 years back. We are in habit to use back, but actually it's wrong. We are supposed to use here 2 years ago, 3 days ago. Okay, जब हम टाइम की बात करेंगे 1 साल पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो हम बोलते हैं बैक, 3 years बैक, 2 years बैक. बट ये गलत है, हमें इस बैक को चेंज करना है और अगो को लगाना है यहाँ पे. ओके, बैक हम यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमें बोलना है बैक इन 90s, बैक इन 2003, तब हम बोल सकते हैं. लेकिन जब हम बोलेंगे ना कि 3 साल पहले, 2 दिन पहले, तब हमने बैक नहीं लगाना है. देन वी नीड टू यूज़ अगो. नाउ कम टू द पॉइंट. वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मिस्टेक्स विच वी यूजुअली डू वाइल स्पीकिंग. वेट, विच वी यूजुअली डू? विच वी यूजुअली मेक. राइट, गलतियाँ करना. डूइंग मिस्टेक? नो, मेकिंग मिस्टेक. तो गलती के साथ मेक वर्ब लगानी है. ईजी? चलो, तो ये तो हमारी डिस्कशन हो गई सिंपल भी. बहाने से हमने डिस्कस भी कर लिया काफ़ी कुछ, एंड हमने डिस्कस भी करी जो बोलते समय हमसे कॉमनली कुछ गलतियाँ हो जाती हैं. नाउ एक जो प्रॉब्लम है दैट वी हैव नो वन टू स्पीक विद, राइट? हाउ कैन वी प्रैक्टिस एज वी आर ऑल अलोन एट होम? हम कैसे प्रैक्टिस करें? सो दिस इज़ द बेस्ट वे. रिकॉर्ड योर सेल्फ, यू कैन सी योर एक्सप्रेशंस, your gestures, the way you are speaking, right? So this is the best way. आज की डेट में आपके पास देखो स्मार्टफोन तो हर किसी के पास है, so यूटिलाइज करो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग बेकार की चीज़ें ओवर फोन. तो बेस्ट है वेन एवर यू हैव टाइम, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ योर फोन एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ. एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वी एवरी टाइम वी कैन नॉट अफोर्ड क्लासेस, राइट? हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं क्लासेस, अपनी अपनी मजबूरी है सबकी. सो दिस इज़ द बेस्ट वे. जो बहुत ही कॉमन ट्रिक सारे बोलते हैं कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर एंड स्पीक टू योर सेल्फ. सो अगर आपको मिरर के सामने नहीं खड़े होना है तो आप एटलीस्ट अपने फ़ोन के सामने यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ ना. आप देख सकते हो, क्योंकि आप उसको बाद में रिकॉर्डिंग को चेक कर सकते हो कि मैंने किस तरह. यू कैन कंपेयर, आपने पहले जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स की हैं अभी रिसेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं. यू कैन सी योर ग्रोथ, राइट? सो गो फॉर इट, बिकॉज यू नो वॉट, excuses are always there. If you are not determined enough, there are so many excuses. टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है. बट इफ़ यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दैट यू रियली वांट टू इन्हांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सो यू नीड टू फाइंड अ वे. आपको खुद ही रास्ता ढूंढना है. नेक्स्ट ट्रिक जो आजकल मैं भी वो यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली. सो दीज डेज मैनी पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर. जो भी अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं, दे पीपल आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, दे आर messaging each other, and they are having video sessions. So this is the best way. But everyone is not comfortable talking to strangers. हर कोई comfortable नहीं है. Even I wasn't.
देयर वाज अ टाइम जब मैं भी कंफर्टेबल नहीं होती थी, बट आई हैव टेकन दैट इनिशिएटिव. आई एम ऑल्सो अप्रोचिंग पीपल एंड आई एम ऑल्सो हैविंग वीडियो interaction with people, and trust me, it really works. It really works. बहुत confidence आता है. और when we you know what, everything has its restriction. If we are recording ourselves, okay, we are in our comfort zone, we are sitting and we are just talking to ourselves only, right? But when we are speaking to some strangers, we are speaking to those people whom we don't know, and we have that random discussions, right? So then you actually get to know how you can find accurate words, vocabulary. So you can try this trick also, and this is for today. I hope you like the video and you like the tricks, और जो भी actually these are not tricks. ये सभी चीज़ें हैं जो मैं खुद करती हूँ, और मुझ में तो बहुत इम्प्रूवमेंट है. आई कैन सी इम्प्रूवमेंट इन मी. इट वॉज ऐसा नहीं, देखिए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम सबके क्लियर होते हैं मोस्टली, ठीक है. हम पढ़ा सकते हैं. इफ़ वी हैव अ बुक इन फ्रंट ऑफ अस वी कैन टीच ईजिली, बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, completely different. Because when you are having a conversation, then actually you come to know how efficient are you with a foreign language. क्योंकि अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ तो हम सभी कंफर्टेबल है ना, बट व्हेन इट कम्स टू एनी फॉरेन लैंग्वेज, इट कैन बी एनी लैंग्वेज, सो देन ओनली वी कम टू नो. सो जस्ट गो फॉर इट. जितना एक्सपोजर आप खुद को दे सकते हो आप दो, एंड इट्स अप टू यू. क्योंकि कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एंड समटाइम्स you feel good, sometimes you are in high spirits, sometimes you feel down, because हर दिन एक जैसा नहीं होता. So just keep message क्या है, what I want to say, keep going, keep growing, और keep improving yourself. So that is it, and I'll see you in the next video. Please वीडियो को देख के लाइक कर दिया करो. आपका लाइक एक मोटिवेशन के जैसा होता है. So please like my video and bye bye, take care.